हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1। हाँ जी दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। बिफोर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी कॉल द नेटवर्क एज, राइट। तो सबसे पहले हम आपको, मुझे लगता है ऐसा आइडिया होना चाहिए, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट। सी, लेट्स सपोज दिस इज वन रूम, okay, and here there are 4 computers, 1, then 2, then 3, and then 4. See, right now if we see, तो यहाँ पर हमारा एक भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं इसको इस वाले कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करती हूँ, then these two computers can talk to each other. Directly मुंह से नहीं बोलेंगे, but yes, obviously it will tell you कि yes, we can share the data from this system to this one and this system to this one. Why? Because these are connected. Okay, but अगर हमें इस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम तक अगर हमें डेटा सेंड करवाना है, तो कैन वी सेंड? No, we cannot. Why? Because this system is a solo system right now. It is not connected with this, it is not connected with this, it is not connected with this also. And if we look onto this system, so this is the same case over here too. It means these two systems are alone, and actually there is one term for this, that is standalone systems. Standalone systems are those which are not connected to any of the system which are present onto the network, right? These two systems are connected together. That's why we are calling these systems are present on the network system. And there is one more term to it, that is called node. Isko hum bolenge node because this is connected onto the system, onto a network, and they can share the data, right? And but as they are not connected onto the network, that's why they will be called as standalone. S-T-A-N-D, stand alone. Alone means normal akela. Nahi, stand alone. No? Okay, fine. I hope this thing is clear to you. No? Now, if we talk about that, we are making some connection between all of these 4 computers. For example, I'm connecting this system to this system to this system to this now. Okay? Now, अगर मैं इनको नंबर दे देती हूँ 1, 2, 3 and then 4. Okay. Now, if I want to send the data from second system to third one, can I send? Answer is yes. How can I send? Firstly, I need to send the data from second to fourth, and fourth is connected with third one, so it can transfer the data from the 4 to third one also. Even there is one another way also. See, second can send the data to the first one, and first can send the data to the third one as well. It means as these systems are connected directly or indirectly to each other, so it is forming one network. So I hope now it is clear to you what is network. Okay. Now, if this thing is clear to you, then I can proceed to the term, that is what is internet is all about. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. सी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक फोटोग्राफ नजर आ रही होगी. दिस इज दिस वन. नो, सी, जब भी हम, जैसे मैंने अभी एक नेटवर्क बनाया था, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. नो, व्हेन all those networks get connected to each other, then it forms a wide network which will be called as internet, right? So you can say in simple term, internet is a network of networks. See, it is written over here, internet is a network of networks. Means बहुत सारे networks आपस में एक दूसरे से connected हो जाते हैं, and it forms a wide network which is called internet. Okay, in simple terms, what we can say is internet is a worldwide. See, already I told you we are having different multiple networks all over the world. No, so it is worldwide, and it is publicly accessible network. Publicly accessible means basically anybody can access your network. आप अगर let's suppose you want to search for something, so you can search it
आपको सिर्फ गूगल पे, क्रोम पे या गूगल के सर्च इंजन पे जाना, यू नीड टू टाइप समथिंग, यू विल गेट मेनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द थिंग, नो. So that is publicly accessible network of interconnected network that used to transmit the data from across the world. I believe मैंने अभी आपको ट्रांसमिशन समझाया तो ये बात समझ आई होगी. हम कहीं से भी किसी भी डेटा को कहीं से भी सर्च आउट कर सकते हैं. ठीक है. That's why we are calling it as network of network. Now, what all things we can connect to a network? First of all, see, इंटरनेट, क्योंकि हम नेटवर्क पे कंप्यूटर सिस्टम ही कनेक्ट नहीं करते. आज का अगर हम लोग वर्ड देखें तो वी कैन कनेक्ट मोबाइल ऑल्सो, वी कैन कनेक्ट योर टैबलेट्स ऑल्सो, वी कैन कनेक्ट अवर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स ऑल्सो. तो अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं एंड इफ इट इज फॉर्मिंग अ नेटवर्क, देन इट विल बी टर्म्ड एज इंटरनेट. सी हियर, अगर हम इंटरनेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल डिवाइस इज कनेक्टेड, टैबलेट इज कनेक्टेड, योर लैपटॉप इज कनेक्टेड, एंड इवन different wiring or you can say cabling is also present in between, जो कि आपका डेटा ट्रांसमिट करने में यूज होती हैं. तो ठीक है, उनके बारे में हम लोग थोड़े से देर के बाद आराम से पढ़ेंगे. तब तक आई बिलीव इतनी बात समझ आई होगी इंटरनेट क्या होता है. नाउ कम टू वन मोर सब टॉपिक ऑफ इट, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. सी, हम एडवांटेजेस का बात कर रहे थे. एडवांटेजेस का मतलब होता है बेनिफिट्स. व्हाट ऑल बेनिफिट्स कैन यू अचीव यूजिंग योर इंटरनेट, नो. तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज वी कैन शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन. यस, वी कैन शेयर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन. बाय विच वे? देखिए दोस्तों, आपके पास बहुत तरीके के वेज होते हैं. अगर हम बात करें तो अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो यस डेफिनेटली यू कैन शेयर योर फोटोज. आपने कई बार खुद भी किया होगा, फोटो कैसे शेयर करते हैं, वीडियो कैसे शेयर करते हैं, यू नो इट, नो. तो हम लोग वो सब चीजें कर सकते हैं. इवन अगर हमें कोई फाइल ट्रांसमिट करनी है, एनी अदर इमेज देन और वीडियो के अलावा कुछ अगर करना है तो वी कैन डू दैट थिंग. और इवन आपको उसके लिए टाइम देखने की जरूरत नहीं है. अगर आप नॉर्मली अगर कहीं फोन कॉल करो तो फोन कॉल करने के लिए यू नीड टू चेक द टाइम कि टाइम ठीक है या नहीं है. बट यस, इन केस इफ यू आर सेंडिंग एनी मैसेज टू एनीबॉडी, यू कैन सेंड इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. इवन अगर हम बात करें कि हम कहीं से कहीं पे अगर हम लोग पोस्ट करते हैं, कोई लेटर पोस्ट कर रहे हैं, अगर हम लेटर पोस्ट करते हैं वी नीड टू चेक कि यहाँ से अभी अगर हमें कनाडा, मैं इंडिया में हूँ एंड आई नीड टू सेंड माय पोस्ट टू कनाडा, इट विल टेक मेनी डेज टू सेंड दैट पोस्ट टू दैट प्लेस, नो. बट अगर मैं यही काम ईमेल के थ्रू कर दूं तो यहाँ विद इन अ सेकेंड इट विल रीच टू दैट प्लेस, नो. And even that will not interrupt that person to whom I am sending that particular mail or message, no. So that is the big advantage, or you can say कि आप अपना डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी, किसी भी टाइम पर, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में, नो. इवन हम लोग किसी भी तरीके के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. ये मैंने आपको बताया. आप मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप भी और टीवी भी. इसके अलावा दोस्तों, आप हमेशा जब भी अगर आप लेट सपोज अगर आप पोस्ट भेजना चाहो तो पोस्ट विल हैव सम मनी. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके, अगर हम दिल्ली टू दिल्ली के अंदर भी अगर भेजना चाहते हैं तो इट इज टेकिंग 60 to 100 रुपीज अप्रोक्सीमेटली फॉर अ स्पीड पोस्ट. बट अगर हम लोग बात करें, अगर हमें मेल के थ्रू अगर किसी को कुछ भेजना है तो क्या हमारे कोई चार्जेस लगेंगे? नो. बस वो चार्जेस लगेंगे जो हमारे वाईफाई के फॉर अ मंथ फॉर अ पीरियड चल रहे हैं. So it will, nominal charges will be taken place. So we can say it is less expensive. Okay. Now, even what all things we can do using this. See, already I told you that we can communicate with anybody. Anybody means अगर हमें कोई भी मैसेज ट्रांसमिट करना है, हमें कुछ भी किसी को कोई फाइल भेजनी है और कुछ भी करना है तो we can do using email and chatting. See, there is one more name to chatting that is called instant messaging. So don't be confused with this. Okay. नाउ फोटो और वीडियो शेयरिंग करते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अभी आपको पता है क्योंकि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, आपको मालूम होगा कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे पास पॉसिबल नहीं होती थ्रू जूम और थ्रू MS Teams और एनी अदर प्लेटफॉर्म, तो वी कैन नॉट कंटिन्यू अवर वर्क. इवन वी कैन नॉट स्टडी इवन, राइट, विदाउट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. तो इट इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिनमें बहुत सारे यूजर्स एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं ऑन वीडियो मोड, जिसमें आप एक दूसरे के व्यूज को शेयर कर सकते हो. दैट कैन बी पॉसिबल ओनली यूजिंग इंटरनेट. ओके.
नाउ नेट बैंकिंग, ऑब्वियसली नेट बैंकिंग मीन्स द बैंकिंग जिसके लिए हमें पैसे डिपॉजिट कराना, पैसे निकालना और किसी तरीके की आपको कोई स्टेटमेंट निकालनी है या कुछ है उस तरीके का कोई ट्रांजेक्शन करना है तो दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग नेट बैंकिंग. नेट बैंकिंग मीन्स इटसेल्फ ऑनलाइन बैंकिंग और यू कैन से इंटरनेट बैंकिंग. ठीक है, तो इंटरनेट के बिना इस तरीके की बैंकिंग पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज यू नीड टू विजिट टू योर बैंक पर्सनली. नो, नाउ ऑनलाइन एजुकेशन, already we are aware about it, via video conferencing we are doing it. Even यहाँ पर एक और मोड होता है जिसमें हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज नहीं करते. वी कैन जस्ट यू नो चेक आउट द यूट्यूब चैनल्स और समथिंग लाइक दैट, जिसके अंदर आपका ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं. वो बेसिकली हैं वो ऑनलाइन ही, बट उसमें टाइम बाउंडेशंस नहीं होता. तो यू कैन से यू कैन अचीव द ऑनलाइन एजुकेशन ऑल्सो यूजिंग इंटरनेट. ओके, अगर कोई आपसे पूछता है ऑनलाइन शॉपिंग, यस आई बिलीव आप लोगों ने बहुतों ने किया होगा, अमेजोन से कुछ खरीदा होगा, फ्लिपकार्ट से कुछ सेल आउट या परचेज आउट किया होगा. दोस काइंड ऑफ स्टफ कैन बी परचेज्ड वाया इंटरनेट इटसेल्फ. क्या दोस्तों हम सोच सकते हो कि हमारा बिना इंटरनेट के गुजारा है? नहीं है. कोई बात नहीं, आज के लिए सिर्फ इतना ही गुजारा करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.